Good morning, my dear students. My name is Khadija Anwar, and this video lecture is of business studies, which will be based on the advantages, or we can say importance, and disadvantages or limitations of planning. So, in the other two parts of this chapter of planning, I have other two videos, the last two videos of this chapter. This is part 3. So in part 1 and part 2 I have explained about planning and its features, and now this video will give you some knowledge about the advantages and disadvantages. So advantages are also known as merits, advantages are also known as importance, ठीक है, and disadvantages are known as limitations, or we can say drawbacks. Jab disadvantages I'll explain you at that time, I will let you know. So my dear students, I hope you all are making notes, and if you people have any query, please, any doubts, you all can ask me by writing comments. Now let us come back to the topic. So today's topic will be advantages and disadvantages of planning. So before that, I will suggest you to watch my last two videos of this chapter, so you can get a brief knowledge about planning. ठीक है, कि प्लानिंग क्या होता है. अपने लास्ट टू वीडियोस में मैंने बताया कि प्लानिंग क्या होता है, फिर प्लानिंग के फीचर्स भी डिस्कस किए हैं, उसका नोट्स भी दे दिया है मैंने. And then what do you mean by planning, the definitions by different scholars, क्या होता है प्लानिंग का, ये सब आपको लास्ट टू वीडियोस में मिल जाएगा. ठीक है. सो आज का टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग. ठीक है. प्लानिंग जैसा कि एक बहुत क्रूशियल फंक्शन है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस, कि वो बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. Okay, so above all other things, now let us go through the importance of planning or advantages of planning. Number 1, attention on objectives. ठीक है, it focuses on the objectives, क्योंकि planning पहला function होता है, तो it is very important to make the objectives before doing something. ये बता देना, ये सजेस्ट पूरा अपने दिमाग में बना लेना, एक ऑब्जेक्टिव बना लेना कि काम को किस तरह से करना है और काम हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्या अचीव करना है. ओके, ये सब कैसे डेवलप करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन को, ये कहाँ से शुरू होता है, पहला स्टेप. और पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है प्लानिंग. ठीक है, इसीलिए ये एडवांटेजेस में आता है. प्लानिंग का सबसे बड़ा खासियत यही है कि हम लोग जो है मेन ऑब्जेक्टिव की तरफ ध्यान रखते हैं. ठीक है. और लुक अहेड, आई हैव ऑलरेडी सेड दैट वी डू ऑल द प्लानिंग्स फॉर फ्यूचर बेनिफिट्स. ठीक है. नाउ it clearly helps laying down the objectives of the organization. Let us go through number 2. Number 2, it removes uncertainty. बहुत सारा ऐसा रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज होता है जो नोन होता है. ठीक है, तो वो जो है हम लोग आराम से उसको रिमूव कर सकते हैं. अगर रिमूव नहीं भी कर सकते हैं तो हम लोग कुछ स्टेप्स ले सकते हैं जिससे वो रिमूव हो सके. ठीक है. बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कौन सा रिसोर्स को किस तरह से फुल्ली यूटिलाइज करना है. ठीक है, ताकि कोई भी रिसोर्स जो है वो वेस्ट नहीं हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो रॉ मटेरियल्स हो, बहुत अच्छे से उसको प्लान करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं ताकि उसका यूटिलाइजेशन फुल्लर हो. और प्लान्ड, जब हम लोग कोई भी काम प्लान करके करते हैं तो वैसे भी बहुत हद तक सक्सेसफुल होता है. फाइन. So all resources are put to best possible uses. This is the third advantage of planning. Now let us go through the number 4, economy in operations. The objectives are determined first and then best possible course of action is selected for achieving these objectives. So there are different methods जिसको चुना जाता है और उसके बाद उन मेथड्स में से एक को सिलेक्ट किया जाता है प्लान करने के लिए. ओके, सो विल गो थ्रू सम ऑफ द मेथड्स ऑफ प्लानिंग इन the next videos, in the upcoming videos. And number 5 is better coordination.
Now the advantage, the importance of why planning is important, because it coordinates the different levels of management in a better way. Okay, the objective of the organization is being common. All efforts are made to achieve these objectives by a concerted effort of all. एक आदमी प्लान नहीं कर सकता है, सब मिल के अपना एफर्ट देते हैं ताकि जो ऑब्जेक्टिव सेट किया गया है उसको अचीव किया जा सके. Now, number six is innovation and creation. A better planning system should encourage managers to devise new ways of doing the things. It helps innovation and creative thinking among managers because they will think of many new things while planning. So what all the things which are going on in the environment, वो लोग प्लान करने के टाइम में वो सारे चीज को अडेप्ट कर सकता है टू मेक प्लान मोर सक्सेसफुल. कैसे? उसको इनोवेट करके, उसको नए तरह से क्रिएट करके. मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पॉसिबल मीन्स दैट मैनेजमेंट शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन ईच एंड एवरी डे एक्टिविटी. इफ द थिंग्स आर गोइंग वेल, then there should be nothing to worry, and management should intervene only when things are not going as per planning. ओके, सो प्लानिंग को, मैनेजमेंट को सिर्फ तभी अपने काम करने का तरीका चेंज करना चाहिए जब उसका किया हुआ प्लान के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा हो. ओके, नाउ द नंबर 8 इज facilitates control. Planning and control are inseparable, क्योंकि with the help of planning what is done, controlling is done. And what is controlling? Controlling is limit the work of the employees, कि सबको पता है कि उसको कहाँ तक काम करना है, उसके बाद उसका काम नहीं है. तो ऐसे बहुत आराम से काम को सही तरीके से किया जा सकता है. देन नंबर 9 इज फैसिलिटेट्स डेलीगेशन. अभी जो हम फैसिलिटेट्स कंट्रोल बताए, फैसिलिटेट्स डेलीगेशन मीन्स द गोल्स ऑफ डिफरेंट पर्सन्स आर फिक्स्ड. मतलब कि द वर्क्स ऑफ डिफरेंट पर्सन्स आर फिक्स्ड, द वर्क्स ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉयज आर fixed. Okay, delegation of authority is facilitated through planning process because all their works are planned. Who has to do what is already planned. So it facilitates control and it facilitates delegation. Now let us come to the limitations of planning. So despite the advantages, there are few drawbacks of planning. ठीक है, प्लानिंग विल ओनली हेल्प इन मिनिमाइजिंग द अनसर्टेनिटीज टू अ सर्टेन एक्सटेंट. जो कि हम बता चुके हैं कि प्लानिंग सिर्फ उन्हीं रिस्क और अनसर्टेनिटीज को ओवरकम कर सकता है जो हम लोग जानते हैं, लेकिन देयर आर सेवरल अदर रिस्क्स, ठीक है, जो हम लोग नहीं जानते हैं या जो आगे चल के आ जाता है. तो चाहे तुम जितना भी अच्छा प्लान बना लो, वो सारा रिस्क को ओवरकम करना बहुत डिफिकल्ट होता है. ओके, सो ये सबसे बड़ा drawback है. Now let us go through some of the drawbacks, or we can say that some of the disadvantages, or we can say that some of the demerits or limitations of planning. ठीक है, तो जहाँ इसकी बहुत सारी बेनिफिट्स है वहाँ इसका बहुत सारा ड्रॉबैक्स भी है. अगर हम लोग प्रेज करते हैं कि प्लानिंग के हिसाब से बहुत सारा काम अच्छा होता है, तो प्लानिंग कई जगह पे बुरा भी होता है. नंबर 1, लैक ऑफ रिलायबल डेटा. इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि जो भी डेटा कलेक्ट करके तुम प्लानिंग शुरू किए हो, जो वेरियस फैक्ट्स को तुम अडॉप्ट करके जो प्लानिंग किए हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल या इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो सब तुमको अप्रोप्रिएट मिला है. ठीक है. नंबर 2, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. वाई इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग? Practical utility of planning is sometimes reduced by the time factor. It is a time consuming process, and most of the time the decisions which should be taken while planning is delayed. Why it is delayed? क्योंकि उसके लिए तुमको सबका व्यूज चाहिए. ठीक है, तो अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस अर्जेंट एक्शन इज नीडेड एंड वन कैन नॉट वेट फॉर द प्लानिंग प्रोसेस टू कंप्लीट. बहुत सारा ऐसा काम होता है जो तुमको अर्जेंटली करना है. ठीक है, उसके लिए तुम बैठ के अगर प्लान करने लगोगे तो तुम्हारा काम डिले होगा. ओके. नंबर 3, it is expensive. Planning process is very expensive. Gathering of information and testing of various courses of action involve greater amount of money. And यहाँ पे नीचे में एक दिया है, according to Heinemann, the cost of planning should not be in excess of its contribution, and wise managerial judgment is necessary to balance the expense of preparing the plans against the benefits derived from them.
first and foremost thing is planning is only an idea which you are doing on in a pen and paper, with the help of pen and paper. उसके बाद उसको create भी तो करना है. तो अगर तुम सारा एक्सपेंस अपना डेटा कलेक्ट करने में सिर्फ प्लान करने के लिए लगा दोगे, तो बाकी जब उसको क्रिएट करने का जो एक्सपेंस आ रहा है वो कैसे फिल करोगे? तो दिस इज व्हाट हेनमैन इज सेइंग, मिस्टर हेनमैन इज सेइंग कि यू हैव टू बैलेंस द सिचुएशन, यू हैव टू बैलेंस द मैनेजेरियल स्किल्स, यू हैव टू बैलेंस एवरीथिंग कि तुम्हारा सारा एक्सपेंस नेसेसरी इंफॉर्मेशन गैदर करने में नहीं चले जाए, बिकॉज आफ्टर प्लानिंग यू हैव टू क्रिएट इट. ओके, सो द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम प्लानिंग इन नो केस शुड बी लेस देन द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इट, एंड द लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज अ लग्जरी फॉर मोस्ट ऑफ द कंसर्न्स बिकॉज ऑफ हैवी एक्सपेंसेस. ठीक है, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने का सोच तो लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म रहे, क्योंकि देयर आर चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. नंबर 4, एक्सटर्नल फैक्टर्स मे रिड्यूस यूटिलिटी. तुम जो भी प्लान करोगे वो जितना तुमको पता चला है उसके अकॉर्डिंग करोगे, लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो तुमको पता ही नहीं है, जैसे कि इकोनॉमिकल फैक्टर्स, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल फैक्टर्स, तो ये सब जो है तुम्हारे लिए बहुत सारा प्लानिंग को अनसक्सेसफुल करने का रीज़न बन सकता है, क्योंकि ये सब तुम्हारे हाथ में नहीं है. Number 5 are sudden emergencies. What are those sudden emergencies? In case of emergencies are anticipated or they have regularity in occurrence, then advanced planning should be undertaken for emergencies too. There are certain emergencies which arise, then the need of the hour is quick action and not advanced planning. ठीक है, हो सकता है कि कुछ ऐसा सिचुएशन अराइज हो जाए जिसमें तुमको बहुत सडनली अपना प्लान चेंज करना पड़ जाए, तब क्या होगा? तो उस लिए कहीं कहीं पे प्लानिंग काम नहीं आता है. सॉरी. नाउ द 6th one is related to the 5th one, resistance to change. मोस्ट ऑफ द टाइम अगर तुम्हारा प्लानिंग बहुत रिजिड हो जाए और तुम उसको नहीं चेंज कर पाओ काम के टाइम में, तो क्या फ़ायदा? अगर तुम अपना मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव्स को ही फुलफिल नहीं कर पा रहे हो अपने प्लान के थ्रू, एंड यू आर जस्ट स्टिकिंग टू द प्लान बिकॉज यू हैव प्लान्ड फॉर इट, देन इट विल नॉट वर्क, बिकॉज इन्वायरमेंटल चेंजेस हमेशा होते रहता है. तो अपने प्लान को यू हैव टू मेक अ फ्लेक्सिबल प्लान सो दैट यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट. Most of the persons generally do not like any change. Their passive outlook to new ideas become a limitation to planning. And Mr. McFarland writes, the principal psychological barrier is that executives, like most people, have more regard for the present than for the future. मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्लान को सिर्फ प्रेजेंट के लिए करते हैं कि अभी जैसे सिचुएशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग सारे प्लान्स कर लिए, बट दे डोंट नो कि फ्यूचर में क्या चेंजेस आएगा. तो उसके अकॉर्डिंग इतना फ्लेक्सिबल रखना चाहिए कि तुम अपने प्लान को चेंज कर सको. इतना रेजिस्टेंस रहना चाहिए, मतलब इतना फ्लेक्सिबिलिटी रहना चाहिए तुम्हारे प्लान में, दैट यू कैन चेंज द प्लान देन एंड देयर अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द एनवायरमेंट. इट इज द प्लानिंग विच हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द फ्यूचर uncertainties. So we have done for today. I'll again say you start making your notes and start preparing for your exams. Your notes are very important. That is why I'm going through, I am defining each and every caption. So that's all for today. Thank you. Take care of yourself and everyone around you.